Uh, Today date is the 26th October 2022. Time is 02:57 a.m. This is next bulletin related to the animal attacks on some celebrities on Navroz. This is the uh, MLC report of Zartaz Gul Wazir, Pakistan Tehreek-e-Insaf member. I don't know what is her post. So I'm going to show you the MLC. So the report is Zartaz Gul Wazir is in coma, and Pakistani government is asking to admit her here in Delhi, All India Institute of Medical Sciences. I don't know what the government will say, but yes, this is MLC report. And according to report, her head is punctured by loins. Yes, by loin, and it was punctured from left hand side, and from here the this area is captured by the loin, and it is punctured and uh, very badly smashed. That's because of she's in coma. Her breast was eaten by animal. I'm going to tell you one more thing. First, I'll explain you what happened. Both breast was eaten by the loin. Her buttock was ass. The flash is correct. And her intestine area, stomach area, is punctured by the animal, and a big area is completely taken out. Another is her head was because of animal tried to lift her. Her head is completely twisted to opposite. That's this area is completely out, not removed, but yes, it's twisted by the animal. Another report is another MLC of her body is her right hand is from upper 3 to 4 inch near to the elbow was chewed by the animal, and from this area it is it is scratched by animal from left to right, a big mark. And mm, very yes, her left eye is punctured. This is the thing. She is in coma. Now it's up to the Indian government and between the Pakistani government, whatever they will take that decision. We don't know. We don't know because she's in coma, and her ribs are not punctured and her heart is functioning. We don't know. And Ayapurva Singh MLCs comes. So also on the table. Ayapurva Singh of Bharatiya Janata Party. Ayapurva Singh's body part
below to the but means just 4 inch above from the body is remain. Other part is not. She was attacked by two lions. She has in captivity two lions. I don't know the location, and if I know, I will not let you tell you. But yes, the lions are in her own house. She's in very bad condition also, because now this is the case of Sajang Hospital, because I'm asking for a complete MLC report, but they are not giving. Yes, 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 she's in SGH, Sajang Hospital, Delhi. Both breasts are, are eaten by the animal, and both birds are also eaten by the animal. And her chest is punctured. Both actually limbs are found separate. And her right hand is off from the joint, little bit from the internal. Actually, you don't know the reality of the animal, lion and tiger. They never like to eat a heart first. Yes, this is the this is the this is why these animals are dangerous, because they love to play with the prey. So whomsoever is in their captivity, they first like to eat from the soft part. You don't know the reality of the lion. Lion always love to eat. He will attack on your neck, or he will attack on your nasal point, for so that you can't able to breathe. He like to kill you, then start eating you from your genitals. Yes, because it's always whether it's a wild dog or lions or tigers or any other animal, they always love to eat you for eat his prey, for is prey from the soft part, and the body's so most soft part is your genitals. So that's why these most of all in that cases, and they start eating from their genitals. And one more thing, you don't know the reality of animal, because we observe, and recently forwarding by ICJ in World Wildlife Federation, and I'm learning wildlife also, because they transferred me another post in IFS, Indian Forest Service. So what we learn since then, that is these animals are very much smart. What they do, actually, they can very easily differentiate. They can very easily differentiate there are females. This is reality. If if they found that female is very much cooperative, if they are feeling that if a female is in attacking mood, they will attack you all on you also. This is the reality. This is the reality. Most of all, in cases of some of we heard very famous cases of a Garhwal, and that was related to bears. You know what they do? They kidnap the women's and keep them alive in their caves. In some cases, women are found after 6 months also alive.
The same cases you no, it's not a movie. It's not a just story from the movie in King Kong. But if found the woman is not cooperative, they will attack on them. They can easily separate. Very easily can identify it's a female. You know what they call it? It's really, really very, uh, a very amazing fact for all of you. If you are a female, remember one thing: if you are going under period terms, blood is coming out from you, please don't go near to the any wild animal, even not in your house pet dog also. They know you are female. And one more thing, you know why these ladies get uh, by eaten by very easily by these animals? Because they in Navroz, they what they do, they these all ladies, whether it's Yana Mir, Mariam Nawaz Sharif, Zartaz Gul, Aipu Singh, and Rabi Pizada, they all goes near to the animal without clothes, completely nude, completely. I recently, 15 minutes back, I ordered to Interpol to download a video. It is uploaded from a PTI. It's a significance video of that Navroz party, that where the ambulances and the public are watching the show, that from that area to some distance, from that area to some distance, you know what was going on there? Mariam Nawaz Sharif was playing with the tigers, lion. They were celebrating Navroz. And I'm warning to that ambulance driver and whomsoever was sitting inside the ambulance. They were giving the special voice. You all are under arrest. And literally, that after the attack done by the animals, then Mariam Nawaz Sharif was taken to the hospital mm, in that ambulance. Now, earlier I said that about the Jartaz Gul Wazir. Yes, she was escaped, but she again come back to the cage near to the animal, and she was shouting that she can easily can teach a good lesson to those animals. So this is the report of Afuwa Singh and Zartaz Gul Wazir. You know, a very similar thing is why these all ladies are selected into giving you a medical bulletin, because they publicized their this act. If you want to see their act, you have to pay them a big price. Uh, this lady, the Apurva Singh, was saved by their parents. They took the torch in their hand, a wood with the fire. They go to near to animals and bring her out. I would like to tell you one more thing. In entire world, last night 2,500 cases of animal attacks was reported to the Interpol, and very big and very famous celebrities died because of it. Yes, each and everyone was filmed themselves. Yes. And a question: I don't know if you wanted to meet to them.
I don't know whether the local police will allow you or not. Let's see. Actually, as we arrested them, we received a special letter from RCJ. They order us to make the release of those girls for a few time for their Navroz. It's a Jewish festival. You don't have any problem. Hmm. It's not my duty. Go and ask the Home Ministry of India. Yes, I warned them earlier also. Yes, actually they were going under investigation because they were we found a direct link of all these ladies to the ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Yes. नहीं, आपकी बात जो है इसका जवाब मैं देता हूँ। आपने हिंदी में पूछा कि ये सारा काम हम लोगों ने किया, क्या कौन सा काम? शेर मैंने पाले थे? हैं? कपड़े मैंने उतारे उसके? हैं? शेर मैंने पाले? कपड़े मैंने तो नहीं उतारे उसके? क्या हमने उसे धक्का दिया? उसने खुद सिक्योरिटी को बाहर निकाल दिया कि हमारा ज्यूइशों का फेस्टिवल, आप यहाँ नहीं आ सकते। तो हम क्या करें? मुझे क्या पता वो कहाँ से लेके आ रही है शेर। खुद रावी पीर की लास्ट वीडियो जो रिकॉर्ड हुई है, उसने कहा कि 12 तारीख के इंसिडेंट के बाद जो आपने इन्वेस्टिगेशन ली उसके बाद भी हमने 250 लोगों को मार दिया, चाहे हम अपने घर में मारा चाहे हमने कहीं मारा। क्या जवाब दें? इसमें गलती पंजाब पुलिस पाकिस्तान की है, हमारी तो नहीं है। हमने तो उन्हें पहले ही कहा था, उन्होंने कहा ठीक है जी हम अरेस्ट ले लेंगे। हमने अरेस्ट मांगी थी इंटरपोल ने, हम रखेंगे उन्हें कस्टडी में, हम तो नहीं जाने देते। ऐसे ही दिल्ली पुलिस का मामला, ऐसे JNK पुलिस जवाब देगी। जवाब JNK पुलिस और क्या कहते हैं वहाँ पे डिप्लॉय आर्मी देगी ना। जिस आर्मी बटालियन के चारों तरफ याना मीर घूम रही थी दिन में दोपहर में, और वो गई है वहाँ, उनको इनविटेशन दे के आई है नवरोज़ का, जवाब वो लोग देंगे, मैं नहीं दूंगा ना। अगर आप मेरे को ये कह रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं आप लोगों ने किया, यहाँ तक मेरे पे तो ये भी ब्लेम लगा कि इन्होंने लॉयंस बदल दिया। अरे यार हमें पता होता तो हम तो उठा के नहीं ले गए होते सर। लॉयंस को जो है ना, इन्होंने लॉयंस के कब्ज को दीवार के अंदर छेद बना बना के उसमें रखा हुआ है। खुद रावी पीज ने अपनी लास्ट और रिकॉर्डिंग बताई है सेकंड वॉइस ऑडियो में, लास्ट इसलिए कह रहा हूँ कि जो अपलोड करी है उसने साफ कह रही है कि हम जब भी काबा जाते हैं वहाँ से टाइगर लेके आते हैं।
क्या जवाब दें? ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट समझे ना। हम तो रिकवर कर रहे हैं, मैंने तो नहीं कहा कि मैं रिकवर करते हुए थक गया, कर रहे हैं। पर वाइल्ड एनिमल्स है, उनको वाइल्ड में ले जाने से पहले वहाँ पे वो जगह बनानी पड़ती है। अचानक जंगल में छोड़ देंगे तो दूसरे एनिमल्स हमला कर देंगे उन पे। सो हमारी गलती नहीं है ना सर। हमने तो पहले ही कहा था नवरोज़ मनाओ चाहे दीपावली मनाओ, हम जेल, आपको जेल में ही रहना है। ये केस तो अभी आपके आगे और भी आना है, जो कि अब आने वाला है। ये जो आपका इंडियन आर्मी में जो मिलिट्री पुलिस है ना, अभी देखो ना जवाब वो लोग देंगे, मैंने दूंगा। एक केस और आ रहा है सर। हमने तो पहले ही कह दिया था इंडिया में अगर किलिंग में कोई और भी देश शामिल हुआ, हम तो उनको उनके देश में जाके मार देंगे। साफ सीधी बात है। अगर टेररिज्म के थ्रू अगर आपने कोई किलिंग करी है, गए काम से आप, चाहे कोई हो। बिल्कुल, कैनिबलिज्म में पाया गया वो किंग चार्ल्स। हमने अलाउड ही नहीं किया भाई। जब तक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे भाई, उसमें सीधी बात है कैनिबलिज्म के अंदर जो है क्या कहते हैं उम्र कैद मिलती है, फांसी की सज़ा तो है नहीं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट जवाब देगी। हमने तो कस्टडी मांगी थी, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जवाब देगी। हमने तो कस्टडी मांगी थी मरियम नवाज की, हमने तो कहा जिंदा रहेगी है। अब आपने जो है जेल अपने बाप का घर समझा हुआ है। जब मर्जी बाहर आ रहे हो, जब मर्जी बाहर अंदर जा रहे हो, तो आप समझो जवाब दिल्ली पुलिस वाले देंगे। आइए, अपूर्वा सिंह के अरेस्ट वारंट आज के हैं। कभी वो जा रही है अयोध्या, कभी जा रही है काशी, कभी जा रही है कर्नाटक। जवाब दिल्ली पुलिस कमिश्नर देगा ना, संजय अरोड़ा देगा ना, जिसको उठा के लेके आए हो गोद में। मैं तो ऐसी बात करता हूँ सर। जवाब जो है डीसीपी साउथ देगा ना, मैं क्यों दूँ? जवाब दिल्ली एमसीडी देगी ना। एनिमल मिले कैसे वहाँ? ये काम दिल्ली एमसीडी का है। जाएंगे ज़िंदगी भर के लिए जेल। सर वाइल्ड एनिमल मिले हैं, टाइगर्स हैं, हंसी मजाक नहीं है। घर में कुत्ते नहीं मिले। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ इधर से जो है, अभी मैंने एक के यहाँ पे यहीं पे देखा मैंने अपनी कॉलोनी में, एक मकान में ऊपर जो है, पता है कौन से वाइल्ड डॉग हैं? आर्कटिक, जो स्लेज में लगते हैं। स्लेज समझते हैं? वो बर्फ़ में जो ले जाने वाली गाड़ी है, उसमें जो आइस डॉग्स नहीं होते, वो हैं। कहाँ से है इसके पास? अलाउड ही नहीं है यहाँ पे। गलती यहाँ के एमसीडी कमिश्नर की है ना। मैं क्या करूँ? मैं तो इन्फॉर्म करके मैं तो रिपोर्ट ही दे सकता हूँ ना। रिपोर्ट रुकी नहीं है मेरी। मैं तो बहुत पहले आगाह किया था। कहता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होता साए। क्यों? मैं तो 100 बार कह दिया भुवनेश्वर आना, उसके घर के नीचे टाइगर्स हैं। रोज़ रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। बिल्कुल रखे हुए हैं। कालेश्वर राणा के घर के नीचे टाइगर है, पर रास्ता जाने का कहाँ से हमें क्या पता? ये दिल्ली पुलिस वाले समझेंगे ना, पर वो समझेगा कैसे महरौली थाने में? क्योंकि इसकी बीवी जो है सामने, जो मैं तो मुँह पे बोल रहा हूँ सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। भुवनेश्वर राणा का नाम भुवनेश्वर है, तो इसलिए जो है भुवनेश्वर मंदिर वाले उसको बचा रहे हैं। अच्छा जी, मुझे नहीं पता। पूछो ना उसकी बीवी महरौली थाने में किस ले गई थी। क्या? कैसे कैसे बना हुआ है घर? सर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स हैं उसके घर के अंदर। बेवकूफ़ समझ रहे हो? अब कहोगे बताएगा कैसे, दिखाएगा कैसे ज़मीन के नीचे है? हम यहाँ बेवकूफ़ पैदा हुए हैं ना, हम लोग तो कुछ सुनते ही नहीं। क्योंकि सब कुछ जो है आपका क्या कहते हैं स्पेशल वॉइस में चल रहा है। समझ में आ रही है? स्पेशल वॉइस में जा रहा है, इसलिए क्या कहते हैं साबित कैसे करोगे? क्योंकि महरौली थाने को पहले ही पैसे देने का वादा कर दिया गया है। पैसा नहीं मिलेगा तो औरत तो पहुंच ही जाएगी। वरना मेरे घर के बगल में ये दारू सप्लायर जो है रिंकू, ऐसे थोड़ी क्या कहते हैं चौड़ा हो रहा होता। क्योंकि घर के अंदर जो ऊपर कमरे में जो है एक बंदर जो है बहुत बुरी तरह बांध के रखा हुआ है। हम तो कुछ देखते नहीं ना, क्योंकि यार रॉ और आईबी वाले तो बहुत बिजी है ना।
क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था हम तो पैसा लेते हैं। पैसे दे रहा, देता रहा भाई। रावी पीज़ा का बाप भी बहुत पैसा देता था पंजाब पुलिस को। ले जा उठा करके अपनी बेटी। तू समझ क्या होगा उसके साथ। मारेगा, मार जिंदा रखेगा, तू समझ, हमें क्या लेना देना। थोड़ा टाइम में डिस्चार्ज मिल जाएगा, अपूर्वा सिंह का बाप उसको लेके जाएगा। क्योंकि उतना पैसा उनके पास है नहीं, तो हम क्या करें। फिल्म के नाम पे क्या कर रहा हूँ उसमें मैं क्या करूँ सर। है करीना कपूर करिश्मा कपूर के साथ क्या हुआ उसमें मैं क्या करूँ। क्यों। उसमें मैं क्या करूँ। भाई साहब आपने घर में क्या कहते हैं खरगोश तो पाला है नहीं, ठीक है। रात के 3:23 पे कोई पटाखे जलाता है? नहीं जलाता ना। मैं बताता हूँ ये वजह क्या है। ये वजह वीडियो बन रही है ना इस समय, इसलिए पटाखा जला। क्योंकि ये आतंकवादी हैं। अब ये कहेगा देखो ये वीडियो में पटाखा जला, मैंने जलाया था, इतने बज के इतने मिनट में वीडियो इस घर में बनी। अरे भाई सब जानते हैं, तू क्या बताएगा। बस पुलिस वाले जो है ना वो पहले ही पैसा और खर्चा लिख ले रहे हैं। क्योंकि वो एक बात बोलते हैं मेरे को बार बार, 100-200 करोड़ तो बड़ी क्या बात कर दी। जिसने मुझे मारने के लिए 100 अरब डॉलर मांगे वो आराम से जय माता स्टोर चला रहा है। मेरे से क्या सवाल जवाब कर रहे हो। मानव नवाज को पालने वाले भी जो है ना बड़े तरीके से पाल रहे थे उसे। ले जा उठा के। मेरे से कह रहे इसने मंत्र ऐसा चला दिया कि जानवरों ने हमला कर दिया। अच्छा जी, ये बात है। मंत्र तो मैंने चला दिया ना कि आप उठ करके जो है शेरों के बीच में चले। नवरोज मैं बनवा रहा था। अच्छा जी। मरियम नवाज को जो है क्या कहते हैं एसेक्स फार्म में मैं तो नहीं बुलाता था। क्यों आती थी मरियम नवाज भारत में एसेक्स फार्म में? ऐसा क्या था, वजह थी ना। 2.5 लाख रुपए तो बुला लो मरियम नवाज को। साफ सीधी बात है। पाकिस्तान में रोटी महंगी और औरत सस्ती है सर। समझ में आ गए। यही हाल ये भारत का करने के लिए सोच रहे हैं। जवाब आप दोगे, मैं क्यों दूंगा। जवाब मीडिया वाले देंगे ना कि आज तक के ऑफिस के नीचे जो है, हाँ 400 सफ़ेद मोर कहाँ से आए। मैं थोड़ी दूंगा। आज तक के ऑफिस के नीचे जो है 4 लाख ब्लू पिजन कहाँ से है। मेरे घर के नीचे कह रहे हैं आज तक वाले कि हम यहाँ पे न्यूज़ रूम बनाए थे। बना लें, यहाँ को जानवर वानवर ला के मत रख दियो, मैं मारूंगा बहुत। मैं तो अपने घर में चूहे नहीं घुसने देता। यहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन भेज दी। रेनू ने नवरात्रे के दिन जो है टोटल 10 लड़कियों के सर काट दिए नवरात्रे पूजन में। मैं देख रहा हूँ उसका हस्बैंड और वो आराम से चौड़े में घूम रहे हैं और मुझे ही आंख दिखा रहे हैं। जा भाई। क्योंकि रेनू खुद महरौली थाने में होके आई थी, आराम से होकर के आई। उसके बच्चा पैदा कर देगी। मुंह पे कह रहा हूँ, है दम बात करने का मुझसे, है दम। पुष्पा जत्थेदार से लगी हुई है। कौन सा जत्थेदार पता है? तभी तो आराम से क्या कहते हैं सुपर वॉइस दी जा रही है स्पेशल वॉइस में। नहीं पता जत्थेदार कौन सा? छतरपुर मंदिर के बगल में जो वो नहीं है गुरुद्वारा, उसमें है वो सरदार।
जवाब मैं क्यों दूंगा, जवाब तुम लोग दोगे। और यहाँ तुम्हारे लोगों को शेर खा गया तो कह रहे मेरे से कह रहे इसने शेर बदल दिया। अच्छा जी। मतलब मैंने शेर बदल दिया वहाँ पे। क्या बात है। कह रहे मैंने शेर बदल दिए इनके। अच्छा जी। ज़्यादा आसान होता मैं लड़की बदल देता। मना लिया नवरोज़। ऑल ओवर वर्ल्ड में 2,500 से के लगभग सेलिब्रिटीज़ मारे गए हैं नवरोज पे। 2,500 के जानवर बदल दिए मैंने। वजह है इसके पीछे एक, जानवरों को अफीम नहीं दी जा रही थी, क्योंकि अफीम के ऊपर नारकोटिक्स ने बड़ी भयंकर रेड करी थी। चिड़चिड़े हो गए थे जानवर बहुत ज़्यादा। हमने भी जब कुछ एनिमल्स कैप्चर करे पाकिस्तान में, 250 शेर कल रात को, शेर, लॉइन, तेंदुए खुले छूट गए, पकड़ लिए गए। असलियत ये थी, क्योंकि अफीम की सप्लाई जो है पीओके से बंद करवा दी मैंने। इसलिए मरियम नवाज अपनी टीम के साथ जो है हमें ब्लैकमेल करने के लिए, और कुछ जुइशों ने ये प्लान बनाया कि हम बताते हैं नवरोज पे हम करते क्या हैं हितेश को, कि देख ले बचाइए ज़रा। मैं क्या बचाऊंगा मैडम, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तभी तो जरताज गुल की रिकॉर्डिंग में एक बात साफ आ रही है। जरताज गुल चिल्ला चिल्ला के शेर को बोल रही है, अब बुलाना कहाँ है वो, देखते हैं कौन बचाएगा तुझे। कुछ हम भी देखते हैं सर। क्यों पोंटी चड्डा को कैसे मारा गया पता चला? अरे यार उसके तो फार्म हाउस पे गोली चली थी। अच्छा जी, हमें नहीं पता। उसके गार्ड्स ने मारा, नहीं हमें नहीं पता जी। उसके बाद 2-2,500 लोग मारे गए। खाने जाने के लिए सब लोग पहुंच गए। कंदिल बलोच की हत्या कहाँ हुई, कैसे हुई, रोमेश शर्मा कैसे शामिल हुआ, किसी को नहीं पता। कह रहे कंदिल बलोच तो यार वो बलूचिस्तान की लड़की हो तो वहाँ मारी गई। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था। यहाँ भारत की इज्जत का सवाल आ जाता है। कहाँ है आजकल नरेंद्र मोदी जी? जवाब मिलिट्री पुलिस वाले देंगे ना। पीएमओ पहुँचते गए बड़े चौड़े होकर के। मना लिया नवरोज। हम्म। क्या मोदी जी की एमएलसी मेरे पास कहाँ से आई? आईबी वाले तो बिजी है ना, इस कॉलोनी में आके विजिट करके जाते हैं कौन सी औरत कैसी है। क्यों? अरेस्ट कहाँ से करेंगे? मीना, मीना का साइज़ ही इतना प्यारा है, इंटरनेशनल बट है, तो इसलिए आईबी में है वो। अच्छा जी, हम तो है नहीं ना। सुपरवाइज मैं अकेले थोड़ी सुन रहा हूँ। मैंने तो ये भी सुना ना, मीना कह रही हितेश मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वहाँ से दूसरा आवाज़ लगा रहा है। अरे मैडम हमें क्या कमी है। अच्छा जी। रॉ वालों को मैं तो हितेश दिखता नहीं ना, महेश का लड़का दिखता है। ले ले रिपोर्ट। क्यों? मर्सिडीज सी क्लास अगर मैंने ऑर्डर कर दी तो बाहर जो है क्या कहते हैं, पहले ही जो है भुवनेश्वर राणा का लड़का खड़ा रहेगा ना। मरियम नवाज को कंप्यूटर मेरे पास भेजना था, भेज दिया भुवनेश्वर राणा के लड़के के पास। जानते हो क्यों? लॉ एंड ट्रेड में एक साथ है ना, और अफीम के ट्रेड में। 20 किलो अफीम घर में रख करके, एक बोरा कोकीन रख के, भुवनेश्वर राणा दुनिया का सबसे शरीफ आदमी है। और यहाँ मंडल जो है बाहर सेंट्रल विजिलेंस का स्टिकर लगाने के बाद जो है दुनिया का सबसे बेईमान आदमी है। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था।
क्यों? यहाँ तो एक रात में ही जो है ना, ज्योति ज्योति आंडा जो है सुनील आंडा की बहन बन जाती है। और 2.5 लाख रुपए के लिए कहाँ जाती है मुझे क्या पता। क्यों? सीआरपीएफ वाले जो है, सीआरपी वाले छतरपुर मंदिर के बगल में के स्कूल के नीचे इसलिए घुसते हैं कि वहाँ मंदिर की जो मूर्ति है वो आरबीआई में जमा होगी, क्योंकि मरियम नवाज ने मंगाई है। ये भी तो सुना है हमने। पर वो मूर्ति वहाँ से निकाल के लेके कैसे जाएंगे? एमसीडी स्कूल है लड़कियों का, वहाँ से नीचे ज़मीन के नीचे से जाएंगे, मूर्ति निकालेंगे, उसकी जगह एक दूसरी मूर्ति रख देंगे। वो यहाँ से ज़मीन के नीचे से ट्रैवल कराएंगे टनल में से, और यहाँ राजपुर खुर्द के पीछे जो खाली ग्राउंड है ना, फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ पे निकालेंगे। और वहाँ से जो है हेलीकॉप्टर में डाल करके प्रिंस चार्ल्स के पास चली जाएगी। वो बगल में ही तो मिलिट्री वालों का है ना कंटोनमेंट। हमने तो ये भी सुना। रातों रात वहाँ पे एमसीडी स्कूल से सीआरपी की बटालियन कहाँ चलेगी? अरे मंडल ने गायब कर दी। मंडल गायब मंत्र जानता है। मुझे नहीं पता जी, मुझे तो ये पता था कि वो ज़मीन खोद के नीचे जो है कमरा बना के रह रहे थे, ताकि उत्तम कुमार फिल्म एक्टर, जी हाँ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नामी ग्रामी उत्तम कुमार साहब के द्वारा बनवाया गया छतरपुर मंदिर, जिसको कांग्रेसी बड़ा पसंद करते रहे, उसमें रखी हुई प्योर गोल्ड की कात्यानी की मूर्ति चोरी करनी है, बहुमूल्य हीरे जवाहरात से जड़ी हुई। क्योंकि सीआरपी वाले आके चेक करके गए, अरे इतनी महंगी मूर्ति यहाँ की है, कोई और सी रखो। कोई कल को कोई चोरी करके ले गया तो अच्छा, आप चोरी करने नहीं आए हो। रातों रात बटालियन कहाँ चली गई, बेवकूफ़ समझ रखा है। पहले इस स्कूल में रहे, जब टनल दीवार से नीचे लड़कों के एमसीडी स्कूल में पहुंच गई तो फिर वहाँ जाके कैंप लगा लिया। मिल गई मूर्ति। छतरपुर मंदिर जानते हो किसने बनाया है? उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन जी ने। वो जानते हो मूर्ति किसकी है? हैं? गोल्ड की जो मूर्ति है जानते हो किसकी है? वो नहीं जानते। सुचित्रा सेन है वो, उत्तम कुमार की धर्मपत्नी। उत्तम कुमार जी के घर परिवार में एक नियम है, अगर उनके घर में किसी महिला की मृत्यु होती है ना, तो उसके नाम से एक देवी की प्रतिमा स्थापित होती है ना। वहाँ अंतिम संस्कार हुआ है सबका। वहाँ जूइसम की तरह खाना, इंसान खाना अलाउड नहीं है। समझ में आ गई? जी हाँ, गूगल सर्च कर लो उत्तम कुमार जी, पता लग जाए जिसने गाना गाया था, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। शर्मिला टैगोर के साथ। जानते हो उस फिल्म की हकीकत क्या है? उत्तम कुमार बंगाल पुलिस में थे, उन्होंने शर्मिला टैगोर किडनैप कर ली थी। कहते तो यही है, पर वो अरेस्ट थी। जानते क्यों? शर्मिला टैगोर एक पानी की नाव में बीच गंगा में, तो गंगा ये शायद ये हुबली है, कैनिबलिज्म कर रही थी, एक बच्चे को किडनैप करके ले गई थी, काट के खा रही थी। पुलिस रेड में पकड़ी गई। वो पुलिस रेड की वीडियो है फिल्म में। जी हाँ, वो कैनिबलिस्ट थी शर्मिला टैगोर। हमने तो ये भी सुना, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स ने उस मूर्ति के लिए करोड़ों रुपए गए थे। यहाँ जय दुर्गेश वाला इसीलिए तो इतनी महंगी ज्वेलरी की शॉप खोल के बैठा था, ताकि उसके जेवर डुप्लीकेट कर सके।
उसमें बैठा हुआ जो गार्ड है, तभी तो मुझे मारने की और रैंसम की धमकी दे रहा है। क्यों? स्वाट वाले तो यहाँ वैसे ही बिजी हैं। हमने ये भी सुना, हितेश को कह रहे हो बुला ले, इंटरपोल और डेल्टा फोर्स आ जाएंगे। क्या हो गया? बहुत जल्दी है मरने की। 6 महीने पहले ही तो तुम्हारी एस्तेसी करनी शुरू करी है। असली वाली जांच तो अब शुरू हो रही है। अब सीआरपी वाले क्या जवाब देंगे? हाँ हाँ, सारा इल्ज़ाम हितेश पे। हितेश के लोग गए। हमने तो ये भी सुना भुवनेश्वर राणा भी गया था खुद, और इस कॉलोनी के लोग भी गए थे टनल बनाने के लिए, और सबको 8-8 लाख रुपए बांटे गए ताकि उस मूर्ति को गायब किया जा सके। क्यों चिंता कर रहे हो? केस आईसीजे में भेज दिया गया है, और इंटरपोल में, लोकेशन और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ। टनल पता है कहाँ से कहाँ बनी? क्यों सर? अब फ्यूज़ उड़ेगा तुम्हारा सीआरपी का। मैं बताता हूँ टनल का रास्ता क्या है। लड़कों के एमसीडी स्कूल से, मेन रोड से, लड़कियों के एमसीडी स्कूल तक, वहाँ से अग्रवाल प्रॉपर्टीज़ टनल, वहाँ से तिवोली गार्डन, तिवोली गार्डन से राजपुर खुर्द के खाली प्लॉट तक। जी हाँ, और पता हो उसमें से निकलने का रास्ता कहाँ है? वो जो कोने में झुग्गियाँ हैं, कुत्ते की मौत मारेंगे सर आप लोगों को ये लोग। और वहाँ से पता है कहाँ जा रही है वो टनल? सब्जी मार्केट। और सब्जी मार्केट से पता है कहाँ जा रही है? खाली प्लॉट तक। ऐसे ही थोड़ी वहाँ इतना सारा मलबा आ गया है। चल हद हो गई, यही टनल है और क्या है? हाँ हाँ, ये वही सीआरपी जो दिल्ली एमसीडी स्कूल के में आके रुके हुए थे। मेरे से कह रहे मंडल ने बटालियन गायब कर दिया। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था। गड्ढा खोद के नीचे कमरा बना के घुस गए, आराम से टनल बना रहे हैं। अच्छा, वो 7 मंजिला घर तैयार हो गया वहाँ पे खुले प्लॉट के नीचे? हो गया तैयार? गोल सा बना हुआ है ना वो, गोल सा है। बोलना जरा दोबारा, क्या एलिगेशन लगाया मेरे पे? मैंने खिला दी मरियम नवाज शेरों को? अच्छा जी, वाह भाई वाह। बहुत दूध की धुली थी ना, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। रावी कि मेरे से कह रहे यार उस दिन तूने वहाँ उस लड़की के बारे में क्यों बोला? अरे मैंने कहा यार मैंने बहुत पहले ही जो है ना रावी पीज़दा को बोल रहा था मैं। वो सुन उसने लिया था यार, ग्रीन पार्क वाली ने। बताओ। अब बताओ क्या कहोगे? बताओ, टनल का रूट गलत बताया गया? हम्म। छतरपुर मंदिर के आते से पूरा नक्शा बना के मैंने टनल बता दी। कह रहे इसे कैसे पता? बॉर्न इंटेलिजेंट है, रियल एसपीजीज हैं। छतरपुर मंदिर से एमसीडी स्कूल, एमसीडी स्कूल से गर्ल्स एमसीडी स्कूल, वहाँ से अग्रवाल प्रॉपर्टीज़, अग्रवाल प्रॉपर्टीज़ से तिवोली गार्डन, तिवोली गार्डन से राजपुर खुर्द के खाली प्लॉट में, और उस खाली प्लॉट से सब्जी मार्केट, और सब्जी मार्केट से पीछे फुटबॉल ग्राउंड में। और पता है फुटबॉल ग्राउंड में कहाँ पे है? फुटबॉल ग्राउंड के बीचों बीच एक सिलेंड्रिकल टनल बनाई जा रही है।
7 मंजिला तैयार हुआ है सर अभी तक। क्या करोगे? मैंने पहले ही जो है क्या कहते हैं इनको समझाया था, देखो बाप नाम है मेरा, बाप नाम मैंने रखा अपना। सुचित्रा सेन का नाम, उसका नाम सुना है? रायमा सेन और रिया सेन का नाम सुना है? रिया सेन और रायमा सेन। मुनमुन सेन का नाम सुना है? अच्छा। उत्तम कुमार के घर परिवार के। बताओ, मुझे कह रहे हैं इसने सीआरपी की बटालियन गायब कर दी। मैंने गायब कर दी? मैं कहा वो तो रही नीचे, वो देखना जमीन के नीचे कर क्या रहे, देख तो सही। आराम से नीचे एक पानी का वो गटर खोल के उसमें एक स्पीकर लगा दिया, अंदर फुल साउंड खोल दिया, सुपर वॉइस चल रही है आसमानों में। अच्छा जी। हम तो यहाँ बेवकूफ़ है ना। वाह भाई वाह। क्यों अशोक कुमार जी? यहाँ से कई लोग गए, 2-2 3-3 दिन काम करके आए टनल में, 8-8 लाख रुपए लिए। क्योंकि वो मूर्ति चार्ल्स को चाहिए थी, इसलिए हमने चार्ल्स मार दिया, किंग चार्ल्स। ऋषि शौनक। अगर दोबारा किसी ने भारत में मूर्तियाँ चोरी करने की कोशिश करी ना, तो अंजाम ऐसे ही होगा, चाहे तुम कोई हो। सीएम का मतलब समझते हो? छतरपुर मंदिर। बहुत दिन से ना मोदी की नज़र थी, क्योंकि आर्टिफैक्ट सेलर। अब खेल फिर यहाँ से शुरू होगा। सोनिया गांधी, राजीव गांधी काफ़ी समय से इस मंदिर के चक्कर काटने लग गए थे। राजीव गांधी रोज़ सुबह गाड़ी लेके पहुंच जाता था मूर्ति देखने, पर उसे अंदर जाने ही नहीं दिया जाता था। उसे वो मूर्ति चाहिए थी, प्योर गोल्ड है, सॉलिड, खोखली नहीं है। वो जानते हो मूर्ति, मूर्ति में मूर्ति है किसकी? पहचाना नहीं, ध्यान से नहीं देखा। हम्म? सुचित्रा सेन है वो। अब भी नहीं पहचाना? दूसरी मूर्ति किसकी है? उत्तम कुमार जी की दूसरी पत्नी की। इमरान हाशमी का नाम सुना है? इमरान हाशमी कौन है जानते हो? नकली नाम है वो, उत्तम कुमार जी का लड़का है वो। ले, क्यों रिया सेन, रहमा सेन? पता तुम्हें इमरान हाशमी कौन है? नहीं मालूम? फिल्म एक्टर उत्तम कुमार का लड़का है वो। नहीं नहीं, सुचित्रा जी का लड़का नहीं है वो, दूसरी जो है उनका लड़का है। एक भाई और है उसका, इमरान हाशमी का। मैं क्या करूँ इसमें? मंडल ने फिर गोभी खोद दी।
अब ये सीआरपी वाले पता अंदर पिट रहे हैं तबीयत से, मेरी टीम ने इतना मारा है ना इनको, पता है क्यों? जाने लग गया। अरे अरेस्ट थोड़ी किया तुझे, अभी क्या टनल भर, मिट्टी कहाँ फेंकी, लेके आ दोबारा। अब वो सीआरपी वाले सारे लगे हुए हैं, मिट्टी भर रहे हैं। बंद कर इसे। उत्तम कुमार जी की पत्नी की मूर्ति है वो, सुचित्रा सेन जी हैं। तो ये कह रहे उत्तम कुमार जी कहाँ रहते थे? छतरपुर मंदिर देखा है? उसमें सीसीटीवी कंट्रोल रूम देखा है? उत्तम कुमार जी वहीं बैठे रहते थे। क्या? उत्तम कुमार जी की सारी पिक्चरें पिप्पा मूवी हैं। मतलब वैसी वाली नहीं, मतलब उनके 1952 की उम्र में जो उनकी डेथ की खबर थी वो झूठी थी। उसके बाद वो पुलिस ड्यूटी पे रहे। हाँ, तो सुचित्रा सेन जी की भी जो 2014 की जो ड्यूटी बता रहे डेथ की, वो झूठी खबर होगी और क्या होगी। ये फिल्म एक्टर है, इन लोगों का भरोसा मत करना, बात मान जाओ मेरी। ठीक है। दूसरी तरफ से जो है और भी कुछ ग्रुप टनल खोद रहे थे, वो भी पिट रहे अंदर। क्योंकि जिस जगह पे मेन वॉलेट है पैसे का, और जिस जगह पे दीवार है ना, तो उसके साइड में हमने एक पिट बनवाई हुई है अंदर, उसमें मेरी टीम ना आराम से सो ही रहती है। अब किसने खोदा वे, कौन निकला इधर? मेरे घर के नीचे भी तो यही होता है। हाँ, इसमें एक ऐसे पॉइंट पे जो है ना अंदर मेरी टीम के बंदे बैठे हुए नसी वाले, आराम से ऐसे बैठे रहते। उधर से जो है ना एक दिन रात को रेनू खोद रही। वो डिवाइस में चेक किया उन्होंने, ये कौन। उधर से दूसरी एनएसजी की टीम आई, माने सर वाली, वहां से खोद के पीछे खाली, और आते आते जो है ना सीधे मेरे इधर वाली नहीं, दीवार की डेप्थ से नीचे पहुंचे ना, तो वहां देख रहे कमरा रहा, जैसी थी जैसी मिट्टी हटी ना, बंदा ऐसे लेटा हुआ कह रहा, क्या परेशानी क्या है तुझे? कह रहा भाई जा रहे हैं यार, हम तो सिक्योरिटी के लाए थे। किस बात की सिक्योरिटी? जा रहा है, भरता हुआ है दोबारा से। ठीक है भाई, और फिर भरते जाते। एक दिन तो ये पिट गया भुवनेश्वर राणा। उधर से पता नहीं क्या इसने कोई ट्यूब डाली है, कुछ डाली, तो इधर अंदर अंदर ना कुछ सर्किट वायर से लगी हुई है। पता लग गया बाहर जाके पीठ कल भी मारा। काम हो गई। तो यहाँ जो है बहुतों की इच्छा रही कि आराम से कागज पे ना टनल का वो बना रहे कि मंडल के घर के नीचे जा करके। मरियम नवाज का कल दिन का जो एक ऑडियो था, रिकॉर्डिंग जो हमने पकड़ी, मरियम नवाज पता है क्या कहती, इधर मेरे घर का ही वाला जो कॉर्नर है ना, क्या तो वहाँ पीछे से ना डागर के घर के वहाँ से टनल बनाओ और उसके कमरे के नीचे घुस के जो है ना इसमें टाइगर छोड़ दो। वो टाइम है यार तेरे पास। 35%। एक 35%, एक 42%। इधर आओ, 28% कहाँ है?
क्या बोले? पॉन्टी चड्डा की हत्या एक लड़की ने करी थी। इन्वेस्टिगेशन ऑन हो चुकी है। एहतियातन कई लोगों को अरेस्ट लिया जा रहा है। पूरी डिटेल अभी नहीं दी है। सुचित्रा सुचित्रा सेन जी की आवाज़ सुन पा रहा हूँ मैं। वो कह रही कौन है ये लड़का, इतनी बातें कैसे जानता है ये? अरे कौन है ये लड़का, इतनी बातें कैसे जानता है ये? रिया सेन और रामा सेन कर इसके घर जाके ना पूरे घर चेक करके आया, अच्छा कौन सा डिवाइस लगा है इसके। अरे चुपचाप घर पहुंचे ही हो। किसको कह रहे हो आप मैडम? घर में ही तो बैठा हूँ। पकड़ ली, पिट रहे हैं बंदर टनल में। मार मार के भूत बना रखा है। नहीं अब तो प्लेट लगाने का काम करवा रहे हैं इससे। प्लैटिनम लग जाएगी, प्लैटिनम की प्लेट लगेगी मंदिर के चारों तरफ। मेन दीवार है ना, उससे नीचे ही है। नहीं वो लगा देंगे लड़के, बड़े आसान है उसमें। और एक तरफ से जो है वो खर्चा जो आएगा देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो फिर फॉर एवर के लिए टाइटेनियम जो छेद नहीं कर पाते ना उसमें, उसमें वो सारी फैसिलिटी होगी। सब में लगा देंगे जहाँ जहाँ पे भी वॉलेट है, लगा देंगे। नहीं तो वॉल्ट तो बहुत पहले से क्या कहते हैं मेरी टीम लगी हुई है। अरे दो लड़के तो वॉल्ट में हमेशा बैठे रहते हैं अंदर ही। जैसे किसी ने बोला इतना 40,000 करोड़ के चक्कर में इतना पिट रहे हैं। मैंने पहले 400 करोड़ भिजवाया, फिर उसके बाद 40,000 करोड़। ठीक है, तो 40,000 करोड़। तो उन्होंने कहा भी छतरपुर मंदिर वालों ने बोला कि भी रखने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने भेज दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उधार ले ले उन्होंने टनल बनाए 12 दोबारा। मेरे पीछे बढ़ गए, कह रहा सीआरपी की बटालियन गायब कर दी। मैंने कहा मैंने गायब कर दी भाई, पता क्या बोलूं। कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई हम पागल लग रहे हैं, बताओ यार। फिर से कह रहे सीआरपी की बटालियन कहाँ गई? वो कहाँ जाएगी भाई, वो जमीन के नीचे देखना, छतरपुर मंदिर की मूर्ति का। इतनी मार पड़ने वाली है ना तुम सबको। मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ। ठीक है। इनके फोटो सर्वर, जिसका फोटो सर्वर हाथ लगा, जिसका फोटो सर्वर हाथ लगा वो पिटा। अभी अभी उत्तम कुमार जी की भी एक जांच आ रही है, हाथी कहाँ रखे हुए? 1,500 हाथी। नहीं मैंने ही फोटो सर्वर खोला नहीं है। यार एक बार उत्तम कुमार जी अपने फार्म हाउस में बैठे हुए, बंगाल की बात है, तो एक आदमी आया हाथी का बच्चा लेके उनके पास। कहते कहते जी ये रख लो। तो उत्तम कुमार जी ने कहा कि भाई कहाँ रख लो? कह आप इसे पालो। तो पालना है क्या भाई, छोड़ जा फिर। वो तो छोड़ के जाने लगा, भाई पैसे। तो उत्तम कुमार जी कह रहे "भाई पैसे मुझसे नहीं देते हम, ठीक है ना। कहाँ से पकड़ के लाया? अभी जंगल से पकड़ा बेचने के लिए। तो ना भाई इसे अरेस्ट कर ले। तो कह रहे कि भाई आप इसे रख लो। कह रहे भाई वहाँ छोड़ा ना, वहाँ सामने जंगल है। तो कह रहे जंगल में नहीं छोड़ते हम। भाई क्यों? यार आप पालोगे तो भाई जंगल भी हमारा ही है यार, हमारे ही जंगल, हमारे जंगल में छोड़ दे।
दिक्कत क्या है तुझे? दिक्कत क्या है तुझे? ठीक है। तो उसके बाद से पता, उत्तम कुमार जी के पीछे पड़ गए, कहते हैं यार बहुत पैसे वाला आदमी बनता है, एक हाथी को खिलाने की तो औकात है नहीं। तो भैया ऐसा है। ठीक है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ होता है। होता है बहुत जल्दी। सर्विस से रिटायरमेंट अपने अपने तरीके से ली जाती है, ड्यूटीज तो चलती रहती हैं, और उनकी भी ड्यूटी चल रही है। ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। पर जो जिस तरह के मामले में आपका, पाकिस्तान के मामले में जैसे देख रहे हैं वर्ल्ड में, एक रात में आज का भी आंकड़ा जो है ठीक ठाक ही चला गया, 1400 से ऊपर जो है, 1400 और 1700 के बीच में सेलिब्रिटीज़ घायल हुए हैं नवरोज में। अभी 3 दिन तक चलता है मेरे ख्याल से, और काफ़ी बुरी तरह घायल हुए हैं, और बहुत बुरा असर भी हुआ है इनका। वीडियोस हैं, इंटरपोल वाले रिकवर कर रहे हैं। मुझे बोला था इन्होंने उसके जरताज और इनकी वीडियोस के बारे में, इन्होंने, मैंने क्या करनी देख के, काम करते जाओ फटाफट निपटा दे ना, टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैं दिन भर में कम से कम भी क्या कहते हैं 15-15, 20-30, 40-40 इन्वेस्टिगेशंस हैं, और इतनी हैवी वेट इन्वेस्टिगेशंस हैं। अब जो ये क्या नाम है, वाइट मोर की इन्वेस्टिगेशन है, और पता है वाइट मोर को रखा कैसे गया है? आप जान के हैरान हो जाओगे। कागज होता है ना, पेपर में लपेट के, सिर्फ मोर का जो है ऐसे करके मुंह बाहर है, बाकी पूरी बॉडी रैप कर रखी है, ताकि वो सिर्फ दाना खा सके। इसी तरीके से पिजेंट भी रखे गए हैं। भाई साहब मायने रखता है यार, 2000, 4000, 8000, 40,000, लाख, 2 लाख पिजेंट रखे हुए हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्पीसीज के। टाइगर्स को तो रखने का तरीका ही इतना गजब है ना, जी मतलब छुटते ही मारते हैं लड़के तो वहाँ जाते जाते। नहीं नहीं, ये टीम नहीं है हमारी, यहाँ तो लाइन लगी रहे पड़ी रहती है। अब भर्तियाँ भी कहाँ कर रहे हैं इसमें, जेएसआर सिक्योरिटीज़ में ब्रीच नहीं होती ना हमारे काम में, कुछ कर लो। तो इसी तरह से जो है क्या कहते हैं रेट चल रही है। अब कई जगह ऐसी है, अब वहाँ पे अंदर जाने के बाद जो है क्या कहते हैं एक जैसे एनिमल्स हैं, अब उनको यहाँ से डिपोर्ट कराना फिर भेजना, अब उसका इनका एक अजीब सा तर्क है। बाहर आ जाएंगे तो खाएंगे कभी, जंगल में तुम वहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हारा क्या काम है, वाइल्ड लाइफ है, वो अपने आप सोचेंगे ना। जंगलों में कहाँ पता लग पाता है। वो धरती पे जब भारत के अंदर 250 करोड़ के लगभग इंसान रह सकते हैं जरा जरा सी कॉलोनी के अंदर, तो ऐसे भी ये मुर्गे मुर्गियाँ और ये सब भी रहते हैं, इनके झुंड होते हैं भाई, इनके झुंड होते हैं। अब ये लोग इस तरह से क्या कर रहे हैं, अब पेरियर ग्रुप के पास जो है करीबन 1.5 लाख के लगभग बताते हैं, 1.5 लाख पता नहीं 1500 हाथी मिले हैं। अब भेजी तो रिपोर्ट मैंने, मुझे गिनती याद नहीं है। हम तो हाथ क्या, जब हम रिकॉर्डिंग सुन रहे होते तो लिखते जाते हैं धड़ाधड़। सोचो, और फिर मिनट में उसे भेजते रहते हैं। आज हमने जो है कोई 2 करोड़ जैबरास पकड़े हैं। मतलब आप ऐसे लिख लो, 2 करोड़ लॉयन, 2 करोड़ टाइगर्स, 2 करोड़ जैबरास, 2 करोड़ हाथी। मतलब धरती में 2 करोड़ से ज़्यादा कभी संख्या बढ़ती ही नहीं है इनकी। ये बहुत एंशियंट कैलकुलेशन है। शाहजहाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका शेरशाह सूरी, इन सब की कैलकुलेशन यही है। ठीक है। हाँ, वो पैसे पैसे की वजह से वहाँ पे सिक्योर किया हुआ, तो हमें पहले ही पता था। हाँ, वो
वो मंदिर का पैसा होता है, 40,000 करोड़ जब भिजवा दिया मंदिर के लिए। अब जाते रहते हैं, भंडारा चलता है अपना, क्या दिक्कत, मज़ा आता है। या तो प्लेट लगाने का काम स्टार्ट करेंगे, टाइटेनियम लगेगी पूरा में, तो दिक्कत ही नहीं। और वो फिर अभी पता नहीं क्या जवाब देंगे ट्रस्टी वगैरह सब, वो तो खुद ही बोल दिया था उन्होंने मेरे को बहुत पहले ही। पता नहीं कितने करोड़ के बाद तो बना देते हैं ना। तो मंदिर में जो अभी ये सीमेंट का बना है पूरा, तो धीरे धीरे जो है उसको पूरा जो है स्टोन का बनेगा ये। हाँ तो बनाना एक बार एक्सरे से करके, 3D ग्राफ तैयार होगा, मशीनें तैयार कर देगी सब। और ये कौन सा तरीका भाई, जो जिस जमाने में अवेलेबल है उससे करेंगे ना काम। थ्री डी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लेज़र और डायमंड कटर्स हैं, राउटर्स हैं, फटाफट मंदिर के सारे पत्थर काट देंगे और लगाते जाना तो पीस बाई पीस, बस ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है। और क्या, पूरा मंदिर का 3D डिज़ाइन बनेगा, फटाफट पत्थर रखते जाएंगे, काट देंगे, हाथ के हाथ रखते जाना। तो हेयर लाइन भी क्या कहते हैं गलत नहीं हो सकता भाई। इस युग में मशीन अवेलेबल है तो मशीन से बनाएंगे। वो कह रहे हैं हमारी इसी बात पे उनसे बात नहीं बनी थी, दस्तगीर खान टीम से और शाहजहाँ की टीम से। भाई एशियंट तरीका थोड़ी होता है, बेवकूफ़ हो गए होगा तुम। इस युग में मशीनें अवेलेबल है तो मशीन से बनेगा ना। डिज़ाइन आप बता दो, देख लो, वैसा डिज़ाइन बना देंगे। लग जाएगी 10,000 मशीनें, पत्थर काटती रहेगी दिन भर, दगा दग दगा दग। हाथ के हाथ वही लगा देंगे, हाथ के हाथ बनता जाएगा, बन के झट के झट्टे से तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। और ये थोड़ी सिस्टम है बैठ करके वही धागा और कैंची लेके काट रहे हैं ये सब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।